Welcome to Chai with Anurag. I wanted to start this video with a little story about my dearest friend. I don't have many friends, it's just one friend that I have. So, this guy, Aman, he bought a brand new German SUV. Now, the cost of the SUV was more than 1 CR. So, he took the delivery from the showroom, he went with his family over there and he clicked a few pictures and uploaded it on Instagram. Now, his wife and his children were constantly uploading pictures in different positions, sometimes in the driving seat, sometimes standing in front of the car. Now, he felt like king of the world for the first 2 3 days after buying the car. So, on the coming Sunday, I called him personally and I said, Yaar, Mubarak ho. You got a beautiful car. I mean, all the hard work that you've done till now has paid off, and this is a brilliant move. I mean, you can afford it और काफ़ी टाइम से यू कैन ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल अच्छा था एंड इट्स अ गुड थिंग दैट यू बॉट इट एंड आई सिंपली आस्क्ड हिम क्या और कहाँ जा रहे हो आज घूमने आई होप इट इज़ आउट ऑफ दिल्ली कोई 200 300 किलोमीटर्स का ट्रिप तो मार कर आओ सिंस इट्स अ न्यू कार बट somehow he sounded not very enthused क्योंकि उसको जब मैंने कहा ना तो उसके मुंह से जो थैंक यू निकला it sounded so low, like he's been defeated. To which I obviously asked him, yaar kya tension hai? I mean, it's a pretty happy moment in your life, why are you so sad? And then he told me, yaar, the opportunity cost of the money that he's already spent on that car plus इसको कमाने में 3 साल लग जाएंगे और जो हम इसका रिटर्न कमा सकते थे अगर हम इन्वेस्ट करते इसको एफडी में भी रख देते अगर सिंपल और इवन इफ ही पुट इट इन द स्टॉक मार्केट तो जितना भी रिटर्न आता उसकी कॉस्ट भी उसकी गई एंड ही वाज़न्ट रियली हैप्पी आफ्टर बाइंग द कार सो आई सिंपली आस्क्ड हिम मत लेता ना फिर क्यों व्हाई डिड यू बाय इट अगर तेरा मन नहीं मान रहा then he told me something that we all face in our everyday lives. I mean, what he said was really shocking. मतलब I thought कि मैं ही ऐसा सोचता हूँ हर कोई ऐसा नहीं सोचता होगा but he told me that one day we were just sitting in our house and we had a simple discussion about the German brands and my wife was like कि now we can afford a car, let's just buy it. So my kids were also sitting there और उन्होंने उसके बाद एवरी डे एवरी वेकिंग मोमेंट मैं जब काम से घर आऊँ जब घर से निकलने वाला हूँ सुबह शाम दे वर आफ्टर माई लाइफ कि डैड वी हैव टू बाय दिस कार एंड ही वाज लाइक यार 3 महीने लगातार इनको मना करने के बाद व्हाट कुड आई डू आई हैड टू डू इट नहीं तो सांस ही नहीं लेने दे रहे थे एंड नाउ आफ्टर द डिस्कशन दे न्यू कि मैं खरीद सकता हूँ तो ये मुझे खरीदवा कर ही माने. Now, this is a problem in every house. We live in our gated societies with our cars that are the center of discussion. Obviously, अगर आप society में belong कर रहे हो at a certain stature, you are known because of the things that you own. आपकी personality कैसी है कैसी नहीं है आपको क्या पसंद है not many people are actually interested in that. Now, if Mrs. Oberoi or Mrs. Sharma are wearing a Bulgari bracelet or a Versace watch, now this would actually impact their social stature. वो लोग किटी पार्टीज कर रहे हैं, they're going for lunch or brunch in maybe a 5-star hotel, a 7-star hotel, hyper luxury. Now this is the luxury trap that I wanted to talk about. Now let me just set the base for this video, how this video will actually proceed. The discussion is really important क्योंकि एक टाइम के बाद लाइफ में when you made it, you worked really hard, तो ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर पाते. इट इज़ लाइक अ ट्रेडमिल. आप ट्रेडमिल पे भागते हैं ना, आप वहीं भाग रहे हो वहीं खड़े हो बट देन यू स्टिल स्वेटिंग यू स्टिल आउट ऑफ ब्रेथ एंड यू नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. व्हेन डज दिस एंड? डज इट एवर इवन एंड? आई मीन यू हैव अ फ्लैट, आप मान के चलिए किसी आप हाई राइज में रह रहे हो, अच्छा 3 4 5 करोड़ का आपका घर है, प्लस यू हैव अ कार जो कि ऑब्वियसली लेट्स टेक another 70 75 lakhs for the car. Then you have children going to the top tier schools. Then you have your wife who's now doing a business based on the earnings that you have. I mean, a social circle business where she creates something or gets something from outside or imports it or heavy,
capital business that we're talking about. It's a good thing. I mean, a lady of the house should be busy with her own aspirations so that her happiness is not dependent upon you, and you create a network around yourself which is also dependent on your social stature. अब एग्जाम्पल हम लें इसका, तो आपका घर है, यू हैव एटलीस्ट 2-3 हाउस हेल्प्स. एक आपकी परमानेंट हाउस हेल्प रहेगी, प्लस एक आएगी जो बर्तन और सफाई करने वाली होएगी या शॉर्ट टर्म, प्लस इफ़ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड तो उसके लिए जापा, या यू हैव अ परमानेंट person to take care of them. Then you have a personal secretary who's gonna keep track of everything in the house. There is a new concept in the market called a house manager. People who live in kothis, you know, जो 3-4 floor की होती हैं. I have seen this. I have a lot of high-end clientele and they have house managers. क्योंकि कोठी को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई मीन, बल्ब कहाँ पर कितने लगे हैं, कितना चेंज कराना है. आपके घर में 16 एयर कंडीशनर्स हैं, उनकी सर्विस अपकीप करना कितना मुश्किल है. यू हैव अ लॉन, उसके अंदर 20 तरीके के फ्लावर्स लगे हैं. कुछ भी घर के अंदर इशू है, द हाउस मैनेजर इज सपोज टू गेट इट डन. यार, यू आर अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट, आपके टाइम की कीमत है, और हाउस मैनेजर इज अ लग्जरी दैट यू बाय which helps you keep your time to yourself. और luxury तो time ही है सिर्फ. Now coming back to the video, you create an ecosystem around you जो कि उसी तरीके से उसी cost पे चल रहा है. And since you are not into a business, you're a VP, you're an AVP, or maybe a director or a CEO or a senior, anything in an organization, you have a very hefty salary. पर अगर हम practical terms में इसको देखो ना, कि आपका जो ड्राइवर है, आपकी जो मेड है और आपकी जो हाउस हेल्प है, वो सब अपना टाइम बेचकर ही पैसा कमा रहे हैं. एंड बिकॉज यू आर एबल टू सेल योर टाइम फॉर अ लॉट मोर देन व्हाट दे कैन, यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट आउट ऑफ इट टू देम. आपकी अगर सैलरी 100 रुपये है, उनकी सैलरी उसमें से टोटल मिला के 10 रुपये है, आप वो दे पा रहे हैं, बिकॉज योर टाइम इज़ वर्थ 100 रुपीज़ एंड देयर टाइम इज़ वर्थ 10 रुपीज़. इसको थोड़ा और क्लियरली मैं बताता हूँ. नाउ अमन, व्हेन ही बॉट अ मर्सिडीज, ही यूज्ड टू हैव अ टोयोटा कैमरी पहले. तो टोयोटा कैमरी इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड कार, पर जो मर्सिडीज है, एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट इज़ अबव 1 लाख रुपीज़, प्लस कैमरी की सर्विस इज अराउंड 25-30,000 मैक्स. अगर कुछ ख़राब भी हो जाए, इट कवर्स दैट. बट मर्सिडीज़ की नॉर्मल आपकी जो सर्विस है, दैट इज़ अबव 60-70K, मे बी इन अ मंथ और टू, depending on what your usage is. So the trap of luxury is you are involved in your life. You have created an ecosystem to support the kind of lifestyle that you're living, and everything around you is built like that. Now you cannot escape it. और अगर आपको उसको maintain करना है, you dig your grave deeper and deeper into the corporate structures that you have. आपको जॉब में सारा टाइम और ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेस, कॉन कॉल्स, मंडे आते ही जान निकल जाती है, बट देन you have to continue it for this particular lifestyle. In the pursuit of success, we have basically lost the concept of what true luxury really is. Let's just understand a few things that actually cover the topic of true luxury. सबसे पहली चीज़, having an empty schedule. I mean, आपको कहीं नहीं जाना है, आपका मन नहीं है, आप नहीं जाओगे बिकॉज यू डोंट वांट टू. आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. अगर मेरा मन ऑफिस जाने का नहीं है, आई डू नॉट वांट टू आर्ग्यू, आई डू नॉट वांट टू आंसर दिस फोन बिकॉज आई डोंट फील लाइक टॉकिंग. क्या आप ये कर सकते हो? दिस इज द ट्रू लग्जरी इन लाइफ. एंड आफ्टर 40, the second most important thing is getting a good night's sleep. सबसे पहला है कि हर 2-3 घंटे में, since you're aging, your muscles are loosening up, it could be diabetes as well, blood pressure as well, आपने दवाई खाई होती है, तो you have to relieve yourself. आपको वॉशरूम जाना पड़ता है 2-3-4 घंटे में एक बारी, तो एक बारी तो नींद तब टूटती है. और अगर गलती से इफ़ यू पिकअप योर सेलफोन या इंस्टा चल गया, क्योंकि हमारी मसल मेमोरी ही ऐसी हो चुकी है, देन अगेन यू कांट स्लीप. फिर सुबह सुबह आपकी जब बेल बजनी शुरू हो जाती है, 8 o'clock, योर फोन स्टार्ट्स रिंगिंग, उसके बाद तो सोना मुश्किल ही है. इफ़ यू कैन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, वो लग्जरी है.
अगर ऑफिस में आप बैठे हो आफ्टर लंच 1-1:30 बजे, क्या हाल होता है। आई मीन यू ऑलरेडी नो कि बैठे बैठे ऐसा लगता है कि सो जाओ। किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करोगे, यू कांट। यू हैव टू फाइनली वॉक अप टू द वॉशरूम, वॉश योर फेस एंड कम बैक एंड सिट इन योर पर्टिकुलर सीट। नींद पूरी करना is one of the biggest luxuries after your 40 years of age. Another important luxury in life is a medicine free life. आपकी ब्लड प्रेशर है या आपकी डायबिटीज़ की दवाई है, इफ़ यू आर ऑन इंसुलिन इंजेक्शंस, उसके बिना सी आफ्टर 40 अगर आपको कोई बीमारी लगती है ना, तो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी हैव, तो वो बीमारी बेसिकली आपके साथ ही जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो थोड़ा टाइम अपने आप को, अपनी बॉडी को देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर लाइफ। एंड अनदर important luxury in life at this point of time is having a cup of tea or a coffee with your family and your loved ones. टाइम निकालो फैमिली के लिए। इफ़ यू नॉट स्टेइंग विद योर सिबलिंग्स, हाँ आपके ओरिजिनल सिबलिंग्स, आपके बच्चों के भाई बहन नहीं जो कजन्स हैं, उनसे मिलो। वी आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड वी आर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल दी सोशल मीडिया एप्स अराउंड अस। हमारे इमोशंस भी वहीं से ट्रिगर हो जाते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन भी वहीं से होती आती है, हमारा थॉट प्रोसेस भी वहीं से स्टिमुलेट हो जाता है। स्टेप बैक, गो मीट योर फैमिली, गो मीट योर फ्रेंड्स। हफ्ते में 1 दिन कोशिश करो उनके साथ बिताना। आई नो इट साउंड्स वेरी प्रीची कि फ्राइडे तक जान वहाँ निकल जाती है ऑफिस में, बट इसीलिए ये चैनल है। इट इज़ गोना स्लोली अनटाई ऑल दी नॉट्स, और वी आर गोना स्टेप बैक कि किस तरीके से यू कैन गेट बैक टू योर सेल्फ, योर लाइफ, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, कि आप अपनी लाइफ की जो एक्चुअल लग्जरीज हैं वो जी पाएँ। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि आप अपने 20 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर कुछ और कर लीजिए, बट यू हैव अ सेटअप नाउ, यू हैव फाइनेंसेस, आपके पास सब सेट होना चाहिए अभी तक। अगर नहीं है तो वी गोना वॉक टुगेदर, वी गोना वॉक हैंड इन हैंड, और हम उसको प्रिपेयर करेंगे अगले 1-2 साल, और उसके बाद वी कैन एक्चुअली डू दैट। यू शुड हैव द पावर टू डिस्कनेक्ट, गो अवे फ्रॉम द करंट सिचुएशन इन योर लाइफ। मंडे आते ही चिढ़ मच जाती है लाइफ से। यू हैव दिस ड्रेड दैट सेट्स इन दैट यू विल हैव टू फेस ऑल ऑफ दिस ऑल ओवर अगेन। यार बर्दाश्त नहीं होता, वही प्रेशर, वही अनरियलिस्टिक टारगेट्स, वही कंपनी ग्रोथ, एंड इट इज़ नॉट योर कंपनी। आपको पता है द कॉर्पोरेट मेमोरी इज ऑलमोस्ट जीरो, यू विल बी रिप्लेस्ड इंस्टेंटली। आपको 1 हफ्ता भी नहीं याद रखा जाएगा इन केस यू डू नॉट अपीयर ऑन योर जॉब टुमारो, एंड यू नो दैट, क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो खुद अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो आपके अंडर थे। कोई चला गया, they are immediately replaced. Plus we have AI that is now coming in. AI is actually to make your job better, but then creating bots that can do repetitive works is actually destroying a lot of jobs. तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट पीस, शांति, आपको सुकून मिले थोड़ा सा लाइफ में। दिस कुड बी योर कॉर्नर जहाँ आराम से बैठ के हम चाय एंजॉय कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो। दिस इज गोना बी अ जर्नी। प्लीज़ फॉलो कर लें, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ हाइप द वीडियो। दिस चैनल वुड ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ हीलिंग in terms of your daily and corporate life. Thank you so much for watching, and always stay blessed.